हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस, यानी यहाँ पर सोशल साइंस के जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, इकोनॉमिक्स का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। और यहाँ कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम व्यू से जो ये क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट व्यू पे रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस here, a part of economics. The next question arrive here that's important. How can poverty be reduced in a future in India? You know that is important question here. How can poverty reduce in a future in India? That's important. Poverty can be reduced in the following way here. First of all, here promoting to inclusive economic growth here. That's important point here. Promoting the inclusive economic growth. Encouraging of entrepreneurship and the small scale industry can create employment opportunities. You know that is important. Small scale industries here. There is a promote for there is a employment of opportunity and leading to the income generation and poverty reduction here. And focusing a sector with their high growth potential such as a manufacturing, service and technology can help create a more job opportunity. That's important here. First point, reducing the future of India here on poverty. The promoting the inclusive of economical growth here. That's important, and here small scale industries create here. The next year, investing in education and skill development. That's important point here. Enhance this has to be a quality of education for all, especially in a rural area, can empower individual to break the cycle of poverty. Like there, emphasizing a skill development program and vocational training can equip individual with the necessary skill for a better employment perspective. That important here, investing in educational and skill development. That's important point. And strengthening is a social safety net here. Strengthening is their social safety net. Expanding a social welfare program such as a direct cash transfer, subsidies, food, and the healthcare can be provided to the safety net for the most vulnerable section of society. That's important here. Directly cash transfer, subsidized food, and the healthcare is important here. And ensuring the efficient implementations and targeting of these programs to be reach those in need to the crucial for their effectiveness here. That's important point here. The next point here, improving agriculture productivity here. That is important. Improving to agriculture productivity. Enhancing agriculture productivity is through the model farming techniques, irrigation facilities, and access to create can uplift rural communities.
and heavily depended on agriculture, and agriculture promoting to diversification into high value crops and providing market infrastructure can help to the farmer earn higher incomes. That's important here, improving to the agriculture productivity here. And the next year, enhancing there is a healthcare and sanitation. Enhancing there is healthcare and sanitation. Investing in a public healthcare infrastructure, especially in a rural area, can reduce the burden of healthcare expensive on the low income household here. The promoting awareness and implementations of proper sanitation and practice can improve public health outcomes and reduce the healthcare cost. That's important point here. Empowering the woman, that's important factor here. Empowering of women, ensuring the gender equality and women as a empowerment are crucial for a poverty reduction. Providing to equal access to education, healthcare, and employment opportunity for women can lead to their economic independence, contributing to the overall poverty education. That's important point here, empowering to the women. And the last point here, addressing regional disparities here, and the focusing on regions with the high poverty rates, such as a remote rural area and a marginalized to the communities can help reduce original disparities and targeted to development programs, infrastructure investment and job creation activities can uplift this regional and improve living standard. That's important point here. 7 point is the most important. Note your notebook. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, निर्धनता एक चुनौती, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 9वीं सामाजिक विज्ञान यहाँ पर एनसीईआरटी सीबीएसई के अंतर्गत जो हमारा यहाँ इकोनॉमिक्स के आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है भविष्य में गरीबी कैसे कम की जा सकती है। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में भविष्य में गरीबी कैसे कम की जा सकती है। देखा जाए तो कुछ कदमें उठा के हम भारत में गरीबी को कम कर सकते हैं और कुछ बातों को एनालाइज करके कुछ फ्यूचर को बना के हम जो है आगे भविष्य में चल सकते हैं। कहते हैं पहला अगर पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कहते हैं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। देखा जाए तो उद्यमशीलता और लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आय सृजन और गरीबी में कमी आएगी। आपको पता ही होगा कि अगर एक उद्योग खोलते हैं हम, बड़े इंडस्ट्री जैसे सरकार आज के समय प्रोत्साहित कर रही है, बड़े बड़े उद्योगों को भारत में ला रही है, तो उससे 100 व्यक्तियों को जॉब मिलेगा। लेकिन अगर लघु उद्योग स्थापित किया जाए, छोटे छोटे उद्योग जो है आम लोगों द्वारा स्थापित किया जाए, तो कहते हैं इससे कई लोग जो होंगे इसी काम में कार्यरत होंगे। पुराने समय में देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वो माता पिता के जगह पर जो है स्वयं बच्चे बैठ जाते थे काम करने के लिए, इसलिए रोजगार के अवसर मिल जाता था। लेकिन आज के समय जो है आधुनिक युग में बच्चे जो है अपने जॉब बदल रहे हैं और लघु उद्योग तो ख़त्म ही हो गई है, जिनके कारण आए दिन जो है गरीबी की जो है सृजन होती चली जा रही है। देखा जाए तो विनिर्माण सेवाएं औद्योगिक जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण सेवाओं और प्रौद्योगिकी जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र डालें तो कहते हैं शिक्षा और कौशल विकास में निवेश। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के स्तर पे हमें विकास करने की आवश्यकता है। कहते हैं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच बढ़ाना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों को गरीबी के चक्र से तोड़ने के लिए सशक्त बना सकता है। कहते हैं दोस्तों शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। लेकिन मैं कितना बार बता चुका हूँ कि कहते हैं गरीबों के लिए शिक्षा भी उतना ही दूर होता जा रहा है जैसे उनसे रोटी कपड़ा मकान हो रहा है। कहते हैं गरीब लोगों के लिए शिक्षा का स्तर प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो गया है। कुछ माता पिता बच्चों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं तो सरकार के जो कार्यरत लोग होते हैं
वो शिक्षाओं को छीन रहे हैं आज गरीबों से। कहते हैं अगर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं माता पिता कष्ट उठा के, तो वहाँ पर टीचर जो है उनको ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं कटोरा पकड़ा के। तो ये क्या सिस्टम है। कहते हैं आज वहाँ पर स्कूल में जाते हैं तो मिड डे मील के रिगार्डिंग जो है सिर्फ उनको भोजन करा के स्कूल से वहाँ पर जो है रवाना कर देती हैं। शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं देखने को मिलता है। और देखिएगा तो माता पिता के मोबाइल पे सभी जगह जो है टीचर जो है असाइनमेंट भेज देते हैं, क्वेश्चन आंसर भेज देते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ नहीं करते कि बच्चे को जो है कुछ शिक्षा दिया जाए, कुछ पढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ी जो है हमारे देश में शिक्षा की कुशलता के विकास में निवेश काफ़ी महत्व रखता है और सरकार को इसकी नीतियों को बदलने में भी ज़रूरी है। कहते हैं जब तक ये कुछ चक्र नहीं टूटेगी, शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा नहीं हो पाएगा और भारत सशक्त नहीं हो पाएगा। मैं जितना मर्जी बोल लूँ, मुझे पता है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे देखिए, कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने से व्यक्तियों को बेहतर रोजगार संभावनाओं के लिए अवसर कौशल से लैस किया जा सकता है। अब देखिए, इस पर भी सरकार ने 2 लाठी चला दिया है। जितने भी वोकेशनल कोर्स थे सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके कारण देखिए वोकेशनल कोर्स ये होता है करने से कि बच्चे जो हैं जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, वो उन क्षेत्र के जो है काम पहले ही सीख लेते हैं, जिससे उनको जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का काम उनको पता होती है, तो वो बहुत ही आसानी से अपने कामों में समावेश कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर भी लाठी मारी है। ऐसे बहुत से कोर्स हैं जो वोकेशनल कोर्स था उसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो इससे जो है रोजगार की संभावनाओं के लिए आवश्यक कौशल लैस किया जा सकता था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो अगला पॉइंट जो बताता है सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना। सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते सीधे नगद हस्तांतरण, सब्सिडी वाले भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का विस्तार करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है और समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है। कहते हैं ज़रूरतमंदों लोगों पर पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों का कुशल कार्यान्वयन और जो है लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना उनकी प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए दोस्तों तो सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना एक देश को मजबूत करने के बराबर है, क्योंकि आज अगर माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो उनको डर होता है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं है। कहते हैं आज भी पुलिस तब पहुंचती है जब सारी घटना हो जाती है। कहते हैं जब पुलिस स्टेशन में भी कोई रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो आपको चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ जाता है और जिसके साथ बुरा हो रखा होता है उसी को ही मार और उसी को डंडा खाना पड़ता है। तो सामाजिक सुरक्षा का जाल मजबूत करना सरकार के लिए सबसे प्राथमिक कदम होना चाहिए। उसके पश्चात अगर देश में हम भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं कृषि उत्पादकता में सुधार करना। आधुनिक कृषि तकनीकी, सिंचाई सुविधाओं और ऋण तक पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादन वृद्धि से कृषि पर अत्यधिक निर्भर ग्रामीण समुदाय का उत्थान हो सकता है। अगर देखा जाए तो अगर कृषि के हम उत्पादन क्षमता में और वृद्धि कर लें और कृषि के क्षेत्रों को ज़मीन को नष्ट न करें तो शायद भारत जो है उन सभी तकलीफ़ों से निकल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव कभी होगा, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है लगता नहीं कि भविष्य में इन सब चीज़ों पर जो है सुधार किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं जो चीज़ बिगड़ता है वो बिगड़ता ही चला जाता है, उसको सही करना संभव नहीं रहता है। और संभव भी कैसे किया जा सकता है जब हमारे देश में राजनीतिक नेता सभी जो है अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, तो देश को कौन देखेगा। कहते हैं उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण को बढ़ावा देने और जो है बाजार का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने से किसानों को उच्च आय अर्जित करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ाना। कहते हैं स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बुनियादी ढांचों में निवेश विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कम आय वाले परिवार पर जो है स्वास्थ्य देखभाल खर्च के बोझ को कम कर सकता है। जागरूकता को बढ़ावा देने और उचित स्वास्थ्य प्रथाओं को कार्यान्वयन से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार भी किया जा सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम भी हो सकती है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात है महिलाओं को सशक्तिकरण करना, यानी महिलाओं को सशक्त बनाना। कहते हैं अगर आप एक महिला को पढ़ा दो तो आने वाले हर एक जनरेशन पढ़ा लिखा ही मिलेगा।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। कहते हैं गरीब कम करने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत जितना मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन यहाँ पर लैंगिक असमानताएं जो हैं आज अपनी चरम सीमा पे है। आज पढ़े लिखे लोग भी लैंगिक असमानताओं में विश्वास रखते हैं। कहते हैं महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार के अवसर तक सामान्य पहुंच प्रदान करने की उनकी आर्थिक स्वतंत्रता हो सकती है, जिससे समग्र गरीब में कमी आएगी। कहते हैं महिलाओं को अगर हम शिक्षित कर देते हैं, महिलाओं को सशक्त बना देते हैं, तो आधे से अधिक समस्याएं जो हमारा है बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ होता है कि कई पुश्तों तक जो है सशक्त बनाया जा सकता है। उसके पश्चात आता है क्षेत्रीय असमानताओं को संबंधित करना। कहते हैं उच्च गरीबी दर वाले क्षेत्रों जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और हाशिए पर रहने वाले समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने में से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। लक्षित विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार की सृजन पहल इन क्षेत्रों का उत्थान कर सकता है और जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है महिलाओं को सशक्त करने की बात। तो महिलाओं को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे, भारत जो है अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुँचेगी। क्योंकि महिलाओं को शिक्षा करने का मतलब होता है अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर देना, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम व्यू से भी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। ठीक है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।